Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this particular video I'm going to discuss about how to fill this CAT 2023 form in an online manner. I will provide all small details which are needed for your examination. ठीक है, आप आसानी से उसको कर पाएंगे. एक बार आप ये complete video देखेंगे तो आपको पूरा guidance हो जाएगा and you will be in a position to fill this form on your own and that's very easy. Yes or no? Great. So my dear students, ठीक है, CAT 2023 का फॉर्म आज से चालू हुआ 2nd of August. Last date is 13th of September. Examination date is 26th of November. Okay? So ये बिल्कुल नोट करना. What are the dates? 2nd August से ये चालू हो चुका, that is Wednesday today. 13th September which is Wednesday, that's the last date. शाम को 5 बजे. Don't wait till रात को 12 बजे. Okay? This is in the evening 5 p.m. Then on October 25 they are going to release your admit card and then November 26 on Sunday you have your exam. Simple. So these are the important dates. Okay. So first and foremost, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए before you start applying, you must know what is the eligibility to appear for your CAT examination. CAT Common Admission Test का eligibility है bachelor degree में minimum 50% marks for general category students, 45% marks for SC, ST and PWD. General category, OBC, EWS इनके लिए 50%, SC, ST और PWD के लिए 45%. Someone who is in the final year of college can also apply. ठीक है, that's also the eligibility. So you can say which are the courses available. There are so many courses available for an MBA part. Okay, which are some of them are known as PGP, some of them are known as MBA. Okay, so why there is a difference? Because some of the IIMs have been converted fully into the university. After that IIM, you can say University Bill of 2017. Some of them are yet to get converted. ठीक है, अभी भी उनका time बाकी है. So therefore they generally say it is PGP, but that's one and the same thing, that is MBA. उसके अलावा कुछ और प्रोग्राम होता है, that is a PhD program which is also known as FPM, Fellowship Program in Management, that is also taking the score of CAT. That's a doctoral, you can say, kind of program. Some of you may be eligible. There are a lot of other private institutes like SP Jain, FMS, IIT, TOPME, MDI, IMI, Nirma, Goa, MICA. They have their own, you can say, selection process, but they take the score of CAT. Okay, just like MICA or NMIMS, they're just like MICA and Nirma, they are going to take the score of CAT, while NMIMS, Symbiosis, XLRI, they have their own separate examinations. ठीक है, तो एग्जाम सेपरेट है और एडमिशन प्रोसेस अलग है. यहाँ पे इंडिविजुअल इन सबका एडमिशन प्रोसेस अलग से चलेगा. ठीक है, एंड दे विल टेक द स्कोर ऑफ CAT. हमने आपको बताया था NITI is now getting converted into IIM Mumbai. We'll have to wait and watch for the final communication for that. ठीक है, so before you register, what you should have in your hand, check eligibility. Okay, so what I'm going to do is I'm going to give you few frequently asked questions before I actually show you how to register. So this is a complete registration guide. Okay, so before you register, you should know eligibility, which I've already told you. Number one. Number two, you must have a valid and unique email address and a mobile number. So आपका email और आपका mobile, ठीक है, ये दोनों आपका चाहिए. ठीक है ना, यूनिक होना चाहिए और यही ईमेल आप हमेशा अगले 1 साल तक यूज करोगे. IIM वाले आपको इसी के द्वारा कम्युनिकेट करेंगे, CAT आपको इसी से कम्युनिकेट करेगा. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ राइट वैलिड ईमेल एंड योर वैलिड मोबाइल नंबर. क्लियर है? ग्रेट. अब आते बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. अब उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देना चाहूंगा. सबसे पहली चीज, सर आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री, डू आई नीड टू सबमिट माय ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स? दैट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका एग्रीगेट फिल करूं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक करूं?
कैट बोलता है दैट यू शुड फिल इट अकॉर्डिंग टू दी यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड. अगर आपका यूनिवर्सिटी बोलता है फाइनल ईयर के मार्क्स लगाना, ठीक है, देन यू मस्ट मेंशन फाइनल ईयर के मार्क्स. आपका यूनिवर्सिटी बोलता है फाइनल ईयर का, दैट इज थर्ड ईयर बीकॉम का, लेट अस से सम अराउंड 80% वेटेज है. सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का 10% वेटेज है, देन यू शुड गो फॉर लाइक दिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन माई इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ठीक है, फॉर अस द इंजीनियरिंग प्रोग्राम, फॉर मी, ठीक है, फाइनल ईयर दैट इज अ फोर्थ ईयर. ठीक है, उसमें जो परसेंटेज आता है दैट्स अ फाइनल थिंग, दैट्स इट. सो ऑलवेज फॉलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड. ठीक है, चलो बढ़िया. नंबर 2, सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माई कोर्स, what marks do I need to enter in my application form? आपके application form में what you have to do is do the aggregate of first year plus second year, or in the final year engineering students it's a third year. So what you have to do is you have to do aggregate till the last mark statement you received. ओके, कभी कभार आपको शायद सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं मिली हो, कोई पंगा नहीं है, सेमेस्टर वाइज मिला, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कीप इट ओनली दैट. जितना मिला है उसका एग्रीगेट. एग्रीगेट समझ में आता है ना दोस्तों, टोटल. ठीक है, चलिए ग्रेट. देन कम्स, सर आई हैव कंप्लीटेड माई 10th and 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, डू आई नीड टू एंटर माई मार्क्स मेंशन इन द मार्क लिस्ट? मार्क लिस्ट में जो आपको मेंशन किया गया है वो आपके एग्रीगेट परसेंटेज होंगे. सो यू ऑल्सो पुट 10th और 12th का एग्रीगेट. बहुत बार स्टूडेंट्स ने एक से 5 सब्जेक्ट लिए होते हैं, 6 सब्जेक्ट लिए होते हैं, 7 लिए होते हैं, और उनका एडमिशन कॉलेज में होता है बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5, ऐसा होता है. ठीक है ना, तो ऐसा गिनना नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 4. यू हैव टू put all aggregate, total is what you have to put in. क्लियर है, चलो बढ़िया. ठीक है, दोनों में, 10वीं और 12वीं दोनों में. सर कैन आई अपीयर फॉर कैट फॉर प्रैक्टिस पर्पज दो आई एम अवेयर दैट आई एम नॉट एलिजिबल? कैट बोलता है नो, यू मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू अपीयर फॉर योर कैट. ठीक है, और आप अगर इस तरीके से कैट अपीयर करोगे तो वो अटेम्प्ट गिना जाएगा, जिसको झूठ गिना जाएगा. झूठा अटेम्प्ट इज, यू कैन से, प्रॉब्लम इन फ्यूचर. ठीक है, सर आई मेड मिस्टेक ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कैट 2023 फॉर्म एंड आई हैव क्रिएटेड माई यूजर ID and password, what should I do now? Remember, once you have created user ID and password, what you cannot change is your personal detail, like your date of birth, your email ID, your mobile number. You can't change it. So if you have committed some mistake in that, if you have committed some mistake in it, make sure that you create another email ID, have another mobile number, and register one more time and create one more time your username and password. That's very important. So make sure that you do not commit even a single mistake while you are filling the form in the initial stage. Okay? ठीक है, आपने अगर इसमें मिस्टेक करी है, then you have to register again with a new email ID. Keep that in mind. Okay? Keep that in mind. This is very crucial. Or every time the CAT form will ask you preview. क्या बोलेगा? Preview करो दोस्तों. सही है? चलो ग्रेट. Sir, my university name is not mentioned in the drop-down list while filling the application form. What should I do? होता है ऐसा, शायद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम कैट वालों के डेटाबेस में नहीं है. So what you can do is you can select others from the drop-down menu and possibly put down the university का name manually. ठीक है, कभी कभार होता है नाम, कभी कभार नहीं होता है. ठीक है, एक समय था जहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी के नाम कैट के पास होते थे क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. अब तो ऐसा है नहीं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कभी भी आ जाती है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सर कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ सबमिट करना है? यस, अगर आपने अपना कैंडिडेचर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में सिलेक्ट किया है, स्पेशली फॉर EWS
नॉन क्रीमी लेयर OBC, SC, ST, then you need to upload relevant certificate. अगर आप PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको रिलेवेंट PWD सर्टिफिकेट लेना, विच इज फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बराबर है, ठीक है। अब उन लोगों के लिए भी एक यूनिक डिसेबिलिटी ID नंबर निकलता है, वो भी सर्टिफिकेट उनको लेना जरूरी है, फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर दैट यू हैव दोस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ यू. So what we will do now, we will actually carry out the entire guideline for registration. Step by step, I'll explain that and I'm sure you'll be in a position to understand this. So here is your CAT 2023 registration ka PDF. This is a complete registration guide. I'm going to explain one by one. ठीक है, सबसे पहले always remember that you have to fill this form through iimcat.ac.in. उसके द्वारा ही आप अपना फॉर्म भरेंगे एंड दैट इज यू कैन से बिफोर 13th September 5 PM, उसके पहले, ठीक है। यू मस्ट रजिस्टर एंड टू रजिस्टर यू मस्ट जनरेट यूजर ID एंड पासवर्ड. टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड, ठीक है, यू मस्ट प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल ID विच यू हैव टू वेरीफाई. OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन होगा. यो OTP वेरिफिकेशन के बाद आपको एक यूनिक ID और पासवर्ड आपके ईमेल ID पे आएगा. इनकेस आपके ईमेल पे नहीं आया एक रीजनेबल टाइम के बाद, तो आप अपने ईमेल में स्पैम में जाकर चेक कर सकते हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ईमेल ID बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रिक्ट हो, तो आप वो डेटा शायद वो स्पैम में लगा दे, ठीक है। आपने एक बार अपना यूनिक ID और पासवर्ड जनरेट कर दिया. कैसे जनरेट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। सो वंस यू गो ऑन iimcat.ac.in साइट, वहां पे लिखा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ऐसा एक बटन होगा. उसके नीचे एक और बटन होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन. सो फर्स्ट न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, वहां से आपका यूजर ID पासवर्ड जनरेट होगा, वो यूज करते हुए देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप इन दिस सेकेंड पार्ट. क्लियर है, चलिए बढ़िया. तो जब आप पहली बार करेंगे, ठीक है, कि भैया आप जब बोलेंगे कि भाई मुझे नया यूजर ID पासवर्ड क्रिएट करना है, देन दे आर गोइंग टू आस्क योर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल ID, उसको कंफर्म करवाया जाएगा वापस ताकि आपसे गलती ना हो जाए, ठीक है। आप कौन से कंट्री से हो, उसकी वजह से आपका मोबाइल नंबर, और वापस मोबाइल नंबर आपको कंफर्म किया जाएगा. रिमेंबर, आपका यहाँ नाम जो लिखना है वो 10th स्टैंडर्ड SSC में जो लिखा गया था, प्लीज वही लिखना है, और वही आपका 12वीं में कंटिन्यू हुआ होगा और वही आपका कॉलेज में कंटिन्यू हुआ होगा. प्लीज मेक श्योर दैट सेम नेम और वही ऑर्डर में, सरनेम, नेम, पापा का नाम ये ऐसा हो, या आपका नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव जैसे आपका 10वीं में लिखा है, बस वही ऑर्डर में, वो ऑर्डर चेंज मत करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ ध्यान से लिखना, गलती से ऐसा नहीं हो जाए 2023 लगा दिया, ये गलती मत करना. वंस यू डू दिस, देन दे विल जनरेट OTP आपके फोन पे आएगा, ठीक है. वो OTP आप वेरीफाई करोगे, बराबर है, ठीक है. उसके बेसिस के ऊपर आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा. इज दैट वेरी क्लियर? नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, दे आर इंपॉर्टेंट. OTP वेरिफिकेशन में आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल जरूरी है. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया दोस्तों? कैप्चा वैप्चा आपसे मांगेंगे, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट वेल, ठीक है. कैप्चा आप बिल्कुल देकर आपको फाइनली रीवेरिफिकेशन पूछा जाएगा कि आपका नाम बराबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ बराबर है, ईमेल ID बराबर है, कंट्री और मोबाइल नंबर. रीवेरीफाई करिए और डिक्लेयर करके कि आई अग्री करके वापस कैप्चा देके रीवेरीफाई कर दीजिए एंड आगे बढ़ जाइए. इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? समझ में आया दोस्तों? कंफर्मेशन होने के बाद आपको एक यूजर ID पासवर्ड आएगा आपके ईमेल ID पे, ठीक है. यू विल ऑल्सो रिसीव लॉग इन डिटेल्स वाया SMS इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. जो आपको आएगा SMS, वो कहाँ से आएगा? आएगा IIMLKO से आएगा. सेंडर ID क्या होगा? IIMLKO.
प्लीज ध्यान रखिएगा। जब ये कर दिया देन यू गो टू द स्टेप 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ यू डोंट गो टू द न्यू कैंडिडेट वाला लॉगिन, बट यू गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। आप यहां पे जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ देयर यू हैव टू प्रोवाइड योर लॉगिन आईडी, और जो आपको पासवर्ड दिया होगा वो लॉगिन आईडी कोई नंबर होगा, पासवर्ड भी कोई नंबर होगा। प्लीज उसको करिए और यहां पे आप अपना कैप्चा देकर लॉग इन करिए। वंस यू लॉग इन, नोट किया जाए, वंस यू लॉग इन, ठीक है, तो आपको क्या बताया जाएगा? ठीक है ना? वंस यू लॉग इन देन दे विल पुट यू कि ये रहा आपका एप्लीकेशन डिटेल, आपका यूजर आईडी दिखेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नाम दिखेगा, कंट्री दिखेगी, ईमेल आईडी दिखेगा। चेक करिए सब बराबर है। हाँ, तो यहां टॉप में नोट किया जाए, सबसे टॉप में राइट में गो टू एप्लीकेशन होगा, प्लीज वहां जाइएगा। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन, ये 6 चीजें आपके सामने खुलेगी। क्या 6 चीजें होगी, किस तरीके से दिखेगी? लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, ये रहा आपके सामने सबसे पहले, ये रहा आपका पर्सनल डिटेल, फिर एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट। ठीक है, ये आपका दिखेगा। सो पर्सनल डिटेल्स में आपका क्या क्या डिटेल पूछा जाएगा, लेट्स फोकस ऑन इट। आपका नाम ऑलरेडी वहां लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम वो ऑलरेडी वहां पे लिख दिया है। ठीक है, आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। स्टार मार्क नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम, ये आपको लिखना है। अदर पर्सनल डिटेल्स ये आपकी ऑलरेडी फिक्स आ गई होगी। आप जेंडर अपनी तरीके से चूज कर सकते हैं, 3 जेंडर आते हैं भैया, देख लेना। नेशनलिटी इंडियन, और कैटेगरी आप क्या देंगे वो प्लीज अच्छे से लिखिए। कैटेगरी आती है जनरल, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो अपने हिसाब से करिए। ठीक है, बराबर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर यू नीड ओबीसी, एससी, एसटी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दोस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विथ यू, कन्वर्ट दैट इनटू पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद यहां पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, आपने बोल दिया कि भैया डू यू बिलोंग टू डिसेबिलिटी, सो इफ यू से यस देन दे विल आस्क यू इज अ डिसेबिलिटी मेजरेबल। अगर हाँ तो कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है, और आपका कोई यूडीआईडी नंबर हो वो आप बता दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ठीक है आप बोलेंगे कि भाई आपको सेंटर पे व्हीलचेयर की ज़रूरत है, आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, ऐसा आपसे पूछेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो आप बता दीजिए कि हाँ हमें ज़रूरत है। फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगा। इन अ कम्युनिकेशन डिटेल प्लीज प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन, ऑल्सो प्रोवाइड राइट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उस तरीके से सोचना कि आप जिस सिटी में टेस्ट देने जाने वाले हो उस सिटी के नज़दीक में अगर कोई बंदा अवेलेबल हो या उसी सिटी में अवेलेबल हो, उसको इमरजेंसी नंबर डालिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट है और अदर 3 है डिपेंडिंग अपॉन आपका से कैटेगरी। कंपल्सरी 2 चीजें हैं, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 1200 बाय 1200 पिक्सल में होगा। ठीक है, और एक आपकी सिग्नेचर होगी 80 बाय 35 mm की। ये सब जेपीजी या जेपीईजी फाइल में होगी, और वो लेस देन 80 KB की होनी चाहिए हर एक फाइल। ये सो नो, फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से दिखने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सो नो, और वही सेम फोटोग्राफ आपको एग्जाम के दिन अपने एडमिट कार्ड के ऊपर डाल के लेके जाना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव द सेम फोटोग्राफ अवेलेबल विथ यू। EWS, NCOBC, SC ST सर्टिफिकेट अगर है तो आप उसको अपने PDF डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे, और अगर PWD कैटेगरी के है तो भी आपको अपलोड करना है। अपलोड करने में आपको इस तरीके से ये बटन होंगे। ठीक है भैया, प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, है ना, क्लिक हियर टू अपलोड। ठीक है, क्लिक हियर टू अपलोड,
क्लिक हियर टू अपलोड, आप अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करिए, हर बार सेव एंड नेक्स्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपसे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछे जाएंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कहाँ से चालू होगा? सबसे पहले चालू होगा आपका 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड क्या होगा? प्लीज सिलेक्ट एसएससी 10th इक्विवेलेंट बोर्ड नेम, ठीक है। कौन से महीने में आपने कंप्लीट किया है, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, मैंने बताया एग्रीगेट करना है, टोटल करना है, टोटल में से आपके कितने मार्क्स आए वो ऑटोमेटिकली यहां से परसेंटेज कवर अप आ जाएगा। मेक श्योर दैट यू डू इट एग्रीगेट हियर। 12वीं के अंदर भी सेम, 12वीं के अंदर भी सेम, 12th इक्विवेलेंट था या डिप्लोमा था, जो भी आपका सिनारियो था, प्लीज करिए। डिसिप्लिन चूज करिए, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, अच्छे से लिखिए, सोच समझ के लिखिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन रिजेक्शन होने वाला है, कट ऑफ उसी से डिसाइड होने वाला है। 12वीं का इक्विवेलेंट बोर्ड नेम, कौन से महीने में और कौन से साल में ये एग्जाम कंप्लीट करी थी, ठीक है, कितने मैक्सिमम मार्क्स, वापस ये एग्रीगेट बात हो रही है, प्लीज नोट करना। बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5, ये सब दुनिया नहीं चल रही है, एग्रीगेट चल रहा है। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, ठीक है। फिर आता है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आर यू अ फाइनल ईयर स्टूडेंट? यस, अगर आप फाइनल ईयर में तो यस करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री? नो। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ डिग्री? 3 ईयर, 4 ईयर, क्या है वो देखिए। व्हाट इज योर करंट सेमेस्टर? प्लीज मेंशन। व्हाट टाइप इज द यूनिवर्सिटी? आप में से अगर लोग VNSU में पढ़ते हैं, है ना, जो गुजरात में सूरत में अवेलेबल है, तो आप इसको लिख सकते हो स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट लिखिए, सेंट्रली गवर्न यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्न लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है ना। फिर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए और उसमें से आपकी कॉलेज का नाम लिखिए, आपका डिग्री नाम क्या है वो सोच समझ के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ढूंढिए, BCom, BBA, सोच समझ के। डिसिप्लिन कौन सी है? BBA है तो आप लिखेंगे मैनेजमेंट, BCom है तो कॉमर्स लिखेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम कैसी है? इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा। मंथ एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट है और मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन है, प्लीज़ नोट करना। अगर आप बीच में फेल हुए हो, आपको अगर 3 साल का कोर्स 4 साल में, 5 साल में कंप्लीट करना पड़ा, तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा और इसीलिए आपको यहाँ पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। चलो बढ़िया। मार्क्स, परसेंटेज अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जो भी आपको मिले वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको, अगर फाइनल ईयर में तो आप एग्रीगेट लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपकी कॉलेज का जो रूल होगा, यूनिवर्सिटी का रूल होगा वो, आर यू अंडर गोइंग अ ड्यूअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स? अगर आप 5 ईयर IIM IPM का कोर्स कर रहे हैं, यू कैन से येस, इफ इट इज नो देन यू कैन से नो, दैट इज वेरी सिंपल। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया दोस्तों? ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स, ठीक है, 2020 में या 21 में मास प्रमोशन से पास हुए हैं, उन्होंने अपना रिजल्ट नहीं मिला है उनको, ठीक है, तो भैया वो अपना प्रमोशन और पास विदाउट मार्क्स लिख सकते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, ठीक है। फिर आती है आपकी सेकेंड डिग्री। इन केस यू हैव ड्यू 2 डिग्रीज, देन यू कैन से, ओ आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री और हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर? ऑब्वियसली अगर आपने बैचलर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो आप यस करेंगे। नो करेंगे तो आगे वाली कहानी थी, यस करेंगे तो इस तरीके का सिनारियो आएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। आपके पास एक से ज़्यादा डिग्री है, आपके पास BCom प्लस LLB है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, क्लिक हियर इफ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री, ठीक है ना। ग्रेट। अब सेम चीज़ आपसे पूछी है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, है ना, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, डिग्री का नाम क्या है, डिसिप्लिन कौन सी है, कब से कोर्स चालू हुआ, कोर्स कब कंप्लीट हुआ, ठीक है, और मार्क्स अवॉर्डेड बाय द इंस्टीट्यूट, ये आप लिखेंगे। अगर आपकी डिग्री खत्म हो गई है तो ऑटोमेटिकली ये मास्टर्स डिग्री वाला मुद्दा आपके सामने आएगा। मास्टर डिग्री के अंदर भी क्या आपकी डिग्री खत्म हो गई है, ये सबसे पहले सॉरी आपसे ये पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू एंटर मास्टर्स डिग्री इंफॉर्मेशन, क्योंकि एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है, आप मास्टर लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने यस कर दिया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा, नो करेंगे तो कुछ पूछेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब प्रोफेशनल डिग्री पे आते हैं दोस्तों।
प्रोफेशनल डिग्री मतलब CA ICWO की बात है. आर यू अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया? से यस इफ यू आर. नो देन नो. मेनी ऑफ यू आर नॉट. Do you want to enter any professional degree detail? If you say yes, then select a degree. Let us say you are doing CA. If it is in progress, mention in progress. If it is completed, say completed. CS कर रहे हैं, you click on CS and say in progress or completed. Depending on what you mention here, you get the name of the professional degree, professional inter marks. ठीक है, फाइनल मार्क्स में कंपलसरी नहीं आएगा. ठीक है, और उसके मुताबिक मंथ एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट एंड मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन आपसे पूछा जाएगा. मेक श्योर दैट यू पुट हियर ऑल एग्रीगेट डेटा. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रहेगा? ग्रेट. इन केस यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री का वर्क एक्सपीरियंस है. नोट किया जाए, वर्क एक्सपीरियंस वही माना जाता है जो ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम होता है, वही. प्लीज, है ना, कोई रैंडम मत. आपकी आर्टिकलशिप या इधर छोटा मोटा, दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क एक्सपीरियंस. तो वर्क एक्सपीरियंस कौन सी इंडस्ट्री में है, कब से चालू हुआ, ठीक है, कब तक का है, उससे ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ डेज गिने जाएंगे टिल 31 ऑफ दिसंबर 2023. तो वो ऑटोमेटिकली गिन लेंगे. तो आपको यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन देनी है. 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़िए. ठीक है, नाउ यू विल गो टू प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स तो आप देखिए, है ना, बहुत सारे आएंगे. ठीक है, आप एक साथ सबको सिलेक्ट ऑल करना चाहे कर देना चाहिए. मेरा सजेशन सिलेक्ट ऑल कर देना चाहिए. ठीक है, और जब सिलेक्ट करेंगे ऑल तो यहाँ सब जगह टिक हो जाएगा. ठीक है, आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे तो भी आप कर देंगे, कोई पंगा नहीं है. और उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग उस प्रोग्राम के लिए आपको कौन सी इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस है, ये इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज IIM अहमदाबाद, यू कैन टेक अप योर ओन नियरेस्ट सिटी. आपकी जो नियरेस्ट सिटी है वो लेनी चाहिए. सिटी से इंटरव्यू का सिलेक्शन रिजेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो प्लीज आपकी नियरेस्ट सिटी आप ले सकते हैं. ठीक है, तो हर कोर्स में आपको ऐसा करना पड़ेगा, हर एक IIM में करना पड़ेगा, हर एक IIM के हर एक कोर्स में करना पड़ेगा जिन जिन कोर्स में आपने टिक किया है. इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया दोस्तों? ठीक है, बॉडी लिस्ट होती है ये, इसको प्रॉपर करने का, क्योंकि 20 IIM तो है ही. हर एक IIM में 2 या 3 प्रोग्राम होंगे, कभी 4 या 5 भी होंगे. तो मतलब आपको करीबन 60, 70 से 100 लिस्ट फिलअप करनी पड़ेगी. फिर आएगा आपका प्रेफरेंस फॉर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस. टोटल 6 सिटी का प्रेफरेंस है आपके सामने. आप अपनी जो पहली प्रेफर्ड सिटी है 99% आपको ये मिलेगा. और अगर आपको यही चाहिए तो जल्दी फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर लेट फॉर्म भरेंगे तो ये सिटी का जो पहला सिटी का प्रेफरेंस है वो सिटी भर जाएगी. तो आपने भरा, लेट अस से यू आर फ्रॉम सूरत. ठीक है, यू पिक्ड अप सूरत फर्स्ट. ठीक है, सूरत के नज़दीक में सिटी आपके पास वडोदरा है. ठीक है, देन यू वांट टू गो टू लेट्स से अहमदाबाद. ठीक है, देन यू वांट टू गो टू मुंबई. ठीक है, देन यू वांट टू गो टू सम अदर सिटी. प्लीज मेंशन ऑल द सिटीज. ठीक है ना, आप देखिए आपके लोकेशन के मुताबिक आपको क्या नज़दीक पड़ेगा. सेम स्टेट में रखने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, फिर उसको भी 7 नेक्स्ट करिए, आगे बढ़िए. एंड अगला स्टेज आएगा आपका पेमेंट का. अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको पेमेंट करना है 2400 रुपीज़. अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 1200 पे करना है. ठीक है, ये किसको पे करना है? जनरल, EWS एंड NC OBC. दिस इज फॉर SC, ST एंड PWD. ठीक है, ग्रेट. आप इनमें से कोई भी चेक कर सकते हैं. SBI ePay और बिल डेस्क. ठीक है, आपने क्लिक किया, आपसे कैप्चा मांगा कि आई अग्री विथ ऑल दिस. ठीक है, आपने टिक कर दिया और उसके बाद वो आपको अगले स्टेज में ले जाएगा. आपसे बिल डेस्क के द्वारा आपका डिटेल मांगेगा. कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं. आप देखिएगा आपका ऑर्डर नंबर होगा, इसको बिल्कुल नोट करके अपने पास रखें. मर्चेंट नेम है IIM लखनऊ, इसको नोट करें. ठीक है, बराबर है. और इसको यहाँ पर आपकी डिटेल्स पे करके पेमेंट करिए. ठीक है, और बाद में आपको, है ना, एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपर सक्सेसफुल हो गया है, और इसी के ऊपर आपको एडमिट कार्ड आएगा. एप्लीकेशन की समरी आपको अपने ईमेल ID पे मिल जाएगा.
ठीक है. और इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम, कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, 0522 विच इज लखनऊ का कोड है, 66966676, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है. और एक ईमेल आईडी दिया है, ये ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल भेज सकते हैं इन केस इफ यू हैव अ क्वेरी, ठीक है. आई हैव कवर्ड ऑल एरियाज इन इट, मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं. सो आई एम श्योर यू गेट टू नो ऑल दिस डिटेल्स. इन केस ऐसी कोई चीज़ जो आपके मन में कुछ दिख रही है जो मैंने कवर नहीं करी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों, मज़ा आया, पूरी जानकारी मिली, ग्रेट. Thank you very much for joining with me on this particular module. ठीक है, have a great day and enjoy.